Hello everyone. Good morning students. How are you? This is Aarti Dadij and today we are going to start with the next chapter, that is chapter 4, integers of class 6 mathematics. What do you mean by integers? The collection of negative numbers, positive numbers and zero together are called integers. वैसे आप लोगों ने देखा है अभी तक सारे जब यहाँ तक मैथमेटिक्स करते हुए टिल क्लास 6 यू हैव स्टडीड अबाउट ओनली पॉजिटिव नंबर्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेगेटिव नंबर्स एंड दीज टुगेदर विद द ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव इंटीजर्स? द नंबर्स +1, +2, +3 and on infinite can be written as 1, 2, 3 and पॉजिटिव साइन इज ओमिटेड हियर. चिल्ड्रन यू नो दैट कि जब हम कोई पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो उसके आगे हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें +1 लिखे, +2 लिखे. वी कैन सिंपली राइट इट एज 1, 2, 3 एंड ऑन. सो हियर द साइन ऑफ एडिशन इज ओमिटेड बट इट इज़ नॉट इन नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव साइन इज कंपल्सरी इन नेगेटिव इंटीजर्स. सी हियर नेगेटिव इंटीजर्स. The numbers -1, -2, -3 are all negative integers. You can see here we have shown the sign of negative minus to represent the negative integer. So it is necessary to put the proper sign of negative if we are having a negative integer. Now what do you mean by absolute value? Absolute value means an integer is its numerical value irrespective of its sign. To show absolute value of a integer, we can use two vertical lines on either sides of the integer. For example, we have taken here, this is the sign of absolute value, two vertical lines, and here we can read at absolute value of -4. So absolute value of -4 is 4. The same, the absolute sign is represented here, so we read it as absolute value of +5. So we can solve it and write the answer 5. But here you can see a change that the absolute value is only for the integer 14 and it is not for the negative sign is outside the absolute value. So if it is outside the absolute value, then we have to put the same sign again with the respective value of that integer. So we can write it as -14 because 14 absolute value of 14 is 14 and the negative sign is outside the absolute value. That's why we have to put it as -14. Yes. Now children, how to represent an integer on a number line? In the last chapter, whole numbers, we have studied how to represent numbers, that is positive numbers. The smallest whole number is 0, you know. So आपने देखा कि हमने कैसे नंबर लाइन पे होल नंबर्स रिप्रेजेंट किए थे और आपने नंबर लाइन ड्रॉ भी करी थी. यू हैव सॉल्व द सम्स ऑफ एडिशंस ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. आपने सब्ट्रैक्शन भी किए थे नंबर लाइन पे. द सेम मेथड वी आर गोइंग टू डू इन इंटीजर्स ऑल्सो. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन आपको पता है वी आर ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन और हमें 0 मिडल में लेना है. 0 इज इन मिडल ऑफ द नंबर लाइन एंड टेकिंग एन प्रॉपर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, वी आर गोइंग टू मार्क द नंबर्स, दैट इज पॉजिटिव नंबर्स ऑन द राइट साइड. आपको पता है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स 0 के राइट साइड बिलोंग करते हैं. सो वी कैन मार्क 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ऑन. द सेम वे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 आपने देखा कि नेगेटिव इंटीजर्स हम मार्क करते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड व्हेन वी आर मार्किंग द सेम डिस्टेंस वी आर टेकिंग, हमें इक्वल डिस्टेंस लेना है. जो हमने 0 to 1 तक लिया है वही डिस्टेंस हमें 0 से -1 तक लेना है और सेम डिस्टेंस पे हमें मार्क करना है. बट आपको ये रिमेंबर करना है कि आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर्स है और नेगेटिव इंटीजर्स आर
जब भी हमें पता चल पाएगा इफ़ वी आर पुटिंग द साइन ऑफ नेगेटिव, और अगर उसमें कोई साइन नहीं होगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। इसलिए यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ इन दिस number line you have seen that 0 is in the middle of the number line and positive integers are lying on the right hand side of the number line. It means जो integers 0 से right side में जा रहे हैं और number line के right side में जा रहे हैं वो हमेशा greater होते हैं। यानी आपने देखा होगा कि 1 is greater than 0, 2 is greater than 1, 3 is greater than 2. Same thing, वही property हमें नेगेटिव इंटीजर्स पे भी अप्लाई होती है। यानी -2 इज़ लेस देन -1। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कैसे कह रही है -2 इज़ लेस देन -1, क्योंकि -1 इज़ ग्रेटर देन -2। नंबर लाइन में हमेशा जो राइट हैंड साइड बिलोंग करते हैं वो हमेशा उस नंबर से ग्रेटर होते हैं। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो यू हैव टू सी this carefully and you have to understand this number line properly, then only you can solve the sums. Next thing, 0 is neither positive nor negative. 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। एंड 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। 1 जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, क्योंकि इससे छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है। एंड बट -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। आपने देखा कि -1 इज़ लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0। -1 कहाँ पर है? 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये जो इंटीजर है -1, ये नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा है। दैट्स वाई वी आर सेइंग -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें इसको ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे अभी हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स। सेम वे जब हम नेगेटिव साइड लिखते हैं तो 0 के पास वाला जो नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4 ऐसे आपको प्रॉपरली अरेंज करना है। इफ़ यू आर नॉट अरेंजिंग प्रॉपरली देन यू कैन कमिट अ मिस्टेक। नेक्स्ट थिंग, ordering of integers. Let's see how to represent it on the number line. Now 3 and 2. अभी जस्ट मैंने आपको समझाया 3 is greater than 2. क्यों? It belongs to the right side of 2. 3 हमेशा 2 से बड़ा है क्योंकि उस राइट हैंड साइड में आ रहा है। एंड ऑन द नंबर लाइन द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड इंडिकेट्स द ग्रेटर नंबर। ओके चिल्ड्रन? नाउ 2 is greater than 1. 0 इज़ ग्रेटर देन -1। अब आपने देखा कि 0 -1 से ग्रेटर है। नेक्स्ट इज -1 इज़ ग्रेटर देन -2। जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू कि -1 -2 से बड़ा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको याद रखनी है। -4 इज़ ग्रेटर देन -5। सो इन दिस वे व्हेन यू आर अरेंजिंग द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन यू हैव टू कंसिडर, आपको नंबर लाइन प्रॉपरली ड्रॉ करनी है। इफ़ यू आर नॉट ड्रॉइंग प्रॉपरली देन योर कैलकुलेशंस विल ऑल्सो बी हैविंग मिस्टेक। सो अंडरस्टैंड द नंबर लाइन प्रॉपरली देन यू कैन ड्रॉ इट। यस बच्चों, अब हमें इंटीजर्स को कैसे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। वी हैव टू फॉलो सम रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट रूल, टू ऐड two positive integers, first find the sum of their absolute value. जब हमें कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं और हमें उनका एडिशन करना है तो सबसे पहले हमें उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड प्लेस अ पॉजिटिव साइन बिफोर इट। आपको पता है कि पॉजिटिव साइन वी कैन ओमिट इट, सो वी कैन सिंपली राइट इट एज अ नंबर इंटीजर। एग्जाम्पल दिया है मैंने एक +5 +4। इन दिस +5 इज़ 1 इंटीजर और सेकेंड इंटीजर है +4 और दोनों के बीच में आपको पता है एडिशन का साइन है। इससे पता चल रहा है कि वी हैव टू ऐड इट। नाउ सबसे पहले व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5? आपने देखा कि अभी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करी थी, सो वी कैन ईजिली राइट इट एज 5। एंड व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4? So 5 + 4 is equal to 9. So we can say
that +5 plus 4 the result is 9, that is the sum is 9. So ऐसे ही हमें कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए जाते हैं तो हम पहले उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस कर लें और फिर उसका आंसर लिखते हैं. द सेकेंड रूल, अब जैसे हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, सेकेंड रूल में हमें दो नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं. तो इफ़ वी आर टेकिंग टू नेगेटिव इंटीजर, फर्स्टली वी फाइंड द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू. तो सेम मेथड है कि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं, एग्जांपल है यहाँ पर -12 प्लस -10, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स आप देख रहे हो, -12 भी नेगेटिव है और -10 भी नेगेटिव है. तो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में एडिशन का साइन है. इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर हमें ऐड करना है. अब इसे ऐड करने के लिए पहले हम -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, सो इट इज़ 12, और -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी तो आंसर आया 10. तो टोटल इज़ 10 + 12 इज़ 22. तो आपको आंसर मिल गया 22. बट वी हैव टू रिमेंबर दिस दैट आफ्टर डूइंग द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, उनका आपने एडिशन किया, उसके बाद आपको नेगेटिव साइन आपको शो करना है. तो द सम इज़ -22. अगर आप 22 लिख देते हैं सो इट विल बी अ मिस्टेक. सो ये आपको ध्यान रखना है कि दो नेगेटिव इंटीजर्स है तो भी आपको दोनों को ऐड करना है, बट यू हैव टू पुट द साइन ऑफ नेगेटिव. एंड अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो सिंपली हमें उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम प्लस करेंगे एंड वी कैन राइट द आंसर. थर्ड रूल, टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर विथ अ नेगेटिव इंटीजर. अभी तक हमने देखा कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर थे, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर थे. अब हम इस एग्जाम रूल में हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और सेकेंड नेगेटिव इंटीजर है. तो सबसे पहले हमें उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन. डिफरेंस का मतलब है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, भले ही वो एडिशन दिया हो. जैसे कि एक एग्जांपल लिया है मैंने, +15 प्लस -10. एक पॉजिटिव इंटीजर है +15, एक नेगेटिव इंटीजर है -10. इन दोनों के बीच में आपने जो साइन देखा है वो एडिशन का है, बट वी आर नॉट गोइंग टू ऐड हियर. यहाँ पर हम एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि जब एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और दूसरा नेगेटिव इंटीजर होता है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. हमें उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है. तो सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी 15 की, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 इज़ 15, और 10 की एब्सोल्यूट -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 10. अब यहाँ पर जो साइन था प्लस का जो साइन वो कन्वर्ट हो गया माइनस में. तो ये आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल. तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो आंसर इज़ 15 - 10 इज़ 5. तो ये तीनों रूल जब हम एडिशंस करेंगे, सम्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सारे रूल आपको याद रखने हैं. देन ओनली यू कैन सॉल्व इट. और ये रूल्स एक बार आप लोग बुक से भी पढ़ लेना. ओके चिल्ड्रन? यस. Now what are the properties of additions of integers? Just now we have studied about the rules of addition. आपने देखा अभी रूल्स एडिशंस के कि दो इंटीजर्स को ऐड करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, वन इज़ पॉजिटिव वन इज़ नेगेटिव. तो हमने सारे रूल पढ़े. द सेम थिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स भी है, एडिशन की प्रॉपर्टीज़. आपने होल नंबर्स के चैप्टर्स में बच्चों एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. ये आपके लिए डिफरेंट है, ये एक नया लॉ है. इस लॉ में बताया गया है जैसे कि 0 + a इज़ इन एन इंटीजर. a कोई भी इंटीजर है तो 0 + a द आंसर इज़ a. फॉर एग्जाम्पल 4 + 0 इज आंसर इज़ 4. सो द सेम थिंग दिस zero additive identity property is applicable here. And the next one is additive inverse. Additive inverse, existence of additive inverse. Additive inverse is for every integer. For example, if it is a, there exists an opposite that is sign of negative. जैसे कि 11 है तो उसका साइन आ जाएगा -11. So we can say it means that is एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमें फॉर एग्जांपल दिया गया है, एक इंटीजर दिया है 6, तो 6 में हम क्या ऐड करेंगे जो कि आंसर 0 आएगा. तो 6 में हम -6 करेंगे. सो 6 का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ? -6. सो
एडिटिव इन्वर्स ऑफ ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ज़ीरो की एडिटिव इन्वर्स ज़ीरो है। एंड द सेम वे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वही प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स की भी है। यू कैन रेफर इट फ्रॉम बुक। नाउ द subtraction of integers. Just now we have studied about addition, now subtraction. In these properties of subtraction, some of properties are applicable and some are not applicable. First property, if a और b दो integers है, then we can say a minus b is also an integer. हम लोग कोई भी दो integer ले रहे हैं तो a minus b आंसर हमेशा integer में ही आता है। जैसे कि 7 minus 5 करेंगे तो आंसर आएगा 2, दैट इज़ ये भी एक इंटीजर है। जैसे कि दो नेगेटिव इंटीजर लिए हमने अभी यहाँ पर -8 माइनस -5। आपको हमने देखा कि हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू के मेथड से सॉल्व किया तो भी आंसर सेम आएगा आपके। अभी मैंने यहाँ लिखा है -8 + 5। जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं -5 के आंसर 5 आता है, बट यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए ये साइन हमारा कन्वर्ट हो गया प्लस में, माइनस माइनस प्लस होता है। हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे -8 + 5 आंसर इज -3। तो ये जो -3 आंसर आया है ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ज़ीरो इज़ एन आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन। ज़ीरो की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू हो रही है क्या? जैसे कि a - 0 करेंगे तो आंसर a आएगा, बट 0 - a करेंगे इज़ नॉट इक्वल टू a। जैसे एग्जाम्पल दिया है 8 - 0 इज़ 8, 5 - 0 इज़ 5। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ a b c आर इंटीजर्स। आपने देखा कि अगर हम तीन इंटीजर्स ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल a b और c, तीन इंटीजर लिए हैं एंड a इज़ ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ a - c इज़ ग्रेटर देन b - c। तो हमें a की वैल्यू a - c जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा ग्रेटर होगी b - c से। तो ये तो थे प्रॉपर्टीज थी सब्ट्रैक्शन की। नाउ वी आर गोइंग टू द रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर, अगर हमें एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है तो वी फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्ट एंड ऐड टू द अदर इंटीजर। तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करने एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं उसका और फिर हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐड टू द अदर इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया -9 + 4। -9 + 4 आपने देखा, अभी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के मेथड से सॉल्व किया था। विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू मेथड ऑल्सो वी कैन सॉल्व इट बाय द नंबर लाइन। नंबर लाइन मैंने आपको सिखाई थी, आपने चैप्टर 2 में हम लोगों ने होल नंबर्स में देखा था कि नंबर लाइन हमें अगर ऐड करना हो तो वी हैव टू गो टू द राइट साइड और सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वी हैव टू गो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो। नाउ सी हियर -9 + 4, अगर आप लोग नंबर लाइन के ज़रिए देखते हैं सो 1 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर एंड सेकेंड इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, और जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर होता है वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इट। 9 - 4 इज़ 5 एंड वी हैव टू पुट द साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर। तो बच्चों ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ और रूल पढ़े हैं। यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द बुक दीज रूल्स। आप लोग ये रूल्स बुक से पढ़ना, तभी आप एक्सरसाइजेज ईजिली कर पाओगे और सारे सम्स आपको ईजिली आएंगे। So children, read these properties and rules from the book, and we have completed lecture 1 of this chapter. We are going to continue this chapter in second lecture. Okay, thank you.